Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Lapti Bhatia and today we are here to solve section E of Gala paper 6. फाइनल पेपर है, फाइनल सेक्शन है, बहुत इजी रहेगा क्योंकि अब तक में सारे वीडियोस में आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे फॉर्मेट लिखना है और किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करना है, कितने ऑप्शंस रहते हैं और क्या वेटेज होता है। ठीक है, ये सेक्शन जो है ये आपका फाइनल सेक्शन होगा बोर्ड एग्जाम में, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स जैसा स्पेयर रखना होगा क्योंकि राइटिंग पार्ट ही है जिसमें आपको कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, बस आपकी नॉलेज है और आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। सारे के सारे गाला सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिलेंगे और यहाँ सॉल्व किए गए सारे पेपर की पीडीएफ फॉर्म आप हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी रिपोर्ट राइटिंग, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें एकदम फॉर्मल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन अटेंड करना होता है। डेट, प्लेस और रिपोर्टेड बाय लिखना जरूरी है और टाइटल लिखना जरूरी है। यू हैव रिसेंटली विजिटेड अ फ्लावर एग्जीबिशन विथ योर टीचर, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 150 वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन के लिए आप डेट के साथ रिपोर्ट लिखेंगे। Our school recently organized an educational visit to a flower exhibition and I had the opportunity to attend it along with my teacher and classmates. The exhibition was held at a public garden, at a large public garden, and attracted many visitors, even from the city, from the state and from the outer states also. As we entered the venue, we were welcomed by a colorful display of flowers. There were beautiful varieties of roses, lilies, orchids, sunflower and many seasonal flowers. The arrangements were attractive and neatly labeled. We also saw bonsai plants, flowering shrubs and creative floral designs that impressed everyone. जिसकी वजह से आपकी floral knowledge भी बढ़ी है, ये भी लिख सकते हैं। Our teacher explained the importance of flowers in nature and how they help in maintaining environmental balance. We learned about different types of plants, gardening methods and plant care. The exhibition also had stalls selling seeds, saplings and gardening tools. You can underline the main points of your writing. The visit was both enjoyable and informative. It increased our awareness about plants and nature. We returned with pleasant memories and a deeper appreciation for the beauty of flowers. Reported by ABC. आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा, जिसमें लेटर और ईमेल में आपको ऑप्शन मिलेगा। ईमेल में हमको बोल रहे हैं कि एक विलेज फेयर में आप अभी गए हैं और अपने फ्रेंड को वो डिस्क्राइब करते हुए आपको ईमेल लिखना है। तो हम दोनों की ईमेल आईडीज और सब्जेक्ट लिख करके स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली जो रिसीवर का ईमेल एड्रेस होगा उसमें अगर आपने कोई नाम लिखा है तो टू में आपको वही नाम लिखना है और लास्ट में जब आप एंड करेंगे तो फ्रॉम में आपको वही नेम लिखना है जो आपने ऊपर लिखा था। Dear Akash, I hope you are fine. I want to share with you my exciting experience of visiting a village fair recently. It was a truly joyful and colorful event. The fair was held in an open ground and was full of life. There were many small shops selling toys, bangles, earthen pots and handicrafts. I enjoyed watching folk dance and listening to traditional music performed by local artists. The sight of villagers in traditional dress made the event more attractive. आगे लिखेंगे there were many rides like the giant wheel and merry-go-round. I also enjoyed delicious foods such as jalebi, chaat, sugarcane juice and whatever. If you have ever visited a such fair, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। One of the most interesting parts was watching magicians and puppet shows, which entertained both children and adults. The fair gave me a glimpse of village culture and simple life. I enjoyed every moment and I hope कि हम भी एक बार साथ में कभी ना कभी जा सकें। ऐसे करके आप आपका ईमेल एंड करेंगे। ईमेल के ऑप्शन में आपको एक फॉर्मल लेटर होगा। Write a letter to Miss Einstein Scientific Equipments on Circuits Road, Ahmedabad, placing an order for apparatus required in your school laboratory. Placing an order आपका टाइप है, कभी लेटर टू एडिटर आता है, कभी म्युनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेन करता हुआ आता है। इस बार प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब हमको कुछ स्टॉक जो है वो मंगवाना है। साइन एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। आगे लिखेंगे कि सबसे पहले हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस हैं, वहीं स्कूल का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर का नाम और एड्रेस लिखेंगे एंड देन सब्जेक्ट इज ऑर्डर फॉर लैबोरेटरी अपैरेटस या फिर रीस्टॉकिंग जेपी हाई स्कूल्स लैबोरेटरी टूल्स। Dear sir, madam, with reference to your catalog and reputation of your firm, I would like to place an order for the following apparatus required for our school science laboratory. ये हम आइटम्स के नाम लिखेंगे। कभी भी प्लेसिंग एन ऑर्डर में आप आपकी कॉस्ट नहीं लिखेंगे,
अभी प्राइसेस चेंज भी हो सकते हैं, हमेशा प्राइसेस अपडेट होते रहते हैं, तो आपको प्राइस नहीं लिखनी है, आप आर्टिकल नंबर, कोई स्पेशलिटी, अगर कलर वगैरह है या कोई भी उसमें और ज़्यादा वेरिएशंस है तो वो सारे वेरिएंट्स लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, नाम लिखिए, लेकिन कभी भी कॉस्ट आप नहीं लिखेंगे। काइंडली इंश्योर दैट ऑल द आइटम्स सप्लाइड आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड प्रॉपरली प्लेस्ड। हम लिख सकते हैं हमारे पेमेंट मेथड्स क्या होंगे, हम कितना ड्यूरेशन चाहते हैं, पेमेंट करने से पहले क्रेडिट चाहते हैं या कैश चाहते हैं, एंड वी वांट अ प्रॉपर रिसीट ऑफ द थिंग। The materials at the above address at the earliest. The payment will be made through check after the delivery of goods. चीज़ें हमको पहले ही लेटर में क्लियर कर देनी है। We hope to receive prompt service as usual. Thank you. ABC के साथ आप एंड करेंगे। And the last question for your board exam will be essay और story. ऑप्शन में आएगा, ठीक है। 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा, आप कोई भी 3 में से ऑप्ट कीजिए। फर्स्ट टॉपिक है एन आवर एट द मार्केट, कि आपका 1 आवर मार्केट में किस तरह गुजरा, भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में, ठीक है, इतना हल्ला था वहाँ पे, या फिर आपने कुछ परचेज किया होगा वहाँ पर, उस मार्केट में प्राइसेस कैसे थे, वेराइटीज कितनी थी, आप उन सब के बारे में इनपुट्स के हिसाब से लिखेंगे। I once spent an hour at a busy market and it was noisy yet interesting experience. The market was full of life and energy. A wide variety of articles were bought and sold there. Fruits, vegetables, grains, clothes, utensils, everything were displayed in small shops and outside stalls. Vendors loudly called out to attract customers. Vendors के wares के बारे में भी हम लिख सकते हैं। Fine. Streams of busy men and women moved about with serious looks on their faces. Shopkeepers appeared important as they weighed goods, collected money and talked confidently with customers. कौन सा शॉपकीपर किस तरीके से बात कर रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। The noise was almost deafening. The shouting of sellers, bargaining voices of buyers, honking vehicles and ringing bells created a loud atmosphere. Many disputes over prices could be seen. Over prices मतलब बायर और सेलर के बीच में काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे प्राइस को लेकर के, बार्गेनिंग को लेकर के। Wealthy customers made quick purchase without any bargaining, while poor buyers took time, carefully counting money and bargaining to get the lowest price. During peak hours, the market was overcrowded and difficult to move through. Move through मतलब वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा था। In the morning when it opened, the market looked calm, and in the evening when it closed, the rush slowly reduced. However, the sanitary arrangements were very poor. Garbage was thrown openly, causing foul smell. Better cleanliness, proper dustbin, and traffic control would greatly improve the market conditions. An hour at the market gave me a clear picture of busy city life or busy urban life, we can say. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। इसके ऑप्शन में आपको दूसरा ऐसे दिया हुआ है, चॉइस ऑफ अ करियर, आपके करियर की चॉइस जब भी आप पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं या आपके मेंटर और टीचर से डिस्कस कर रहे हैं। करियर प्लानिंग एट स्कूल स्टेज जब बच्चे करते हैं, पेरेंट्स की गाइडेंस लेते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप प्रोफेशनल वर्ल्ड के बारे में आप लिखेंगे। The choice of a career is one of the most important decisions in a person's life.
A career not only provides a means of earning but also gives direction and purpose to life. Therefore, careful career planning should begin at the school stage itself. और आप चाहें तो आप अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, किसी भी मेंटर की आप हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. At school, students discover their interest, ability and strengths. Teacher and career counselors can help students understand different professions. Parents' guidance also play a vital role in career selection. Parents have experience and knowledge of the world, as their advice can help students make wise decisions. However, a career should not be forced on a student. It must match the student's interest and talent. नेक्स्ट आगे लिखेंगे हम इसी में, once a profession is chosen, special efforts are required to achieve success. Students must select the right course related to their field of interest, field of choice and work sincerely towards it. हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन हर फील्ड में लगता है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो. ठीक है, दोनों में से कोई एक हार्ड वर्क तो डेफिनेटली लगता है टू रीच गोल्स. इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. It helps a person gain expertise and better opportunities. In conclusion, choosing the right career requires proper planning, guidance and continuous effort. और proper determination के साथ हम या कोई भी person अपनी professional life में success build कर सकता है. दोनों ऐसे जब भी आप चूज नहीं करते तो आपके पास एक और लाइफलाइन रहती है स्टोरी की, जो ऑल्सो 8 मार्क्स की रहती है, जिसमें आपको टाइटल, मॉरल, कुछ डायलॉग्स और स्टोरी लाइन के साथ मिक्स करके लिखना होता है. स्टोरी की आउटलाइन देख के हमको लग रहा है कि द्रोणाचार्य और अर्जुन महाभारत की एक स्टोरी है. द आई ऑफ द बर्ड और सिंगल गोल, फोकस ऑन गोल, कुछ भी आप अपना टाइटल लिख सकते हैं. वन डे द्रोणाचार्य डिसाइडेड टू टेस्ट द कंसंट्रेशन एंड स्किल ऑफ हिज स्टूडेंट्स. He selected a tall tree in the forest और उन्होंने वहाँ जाकर के एक wooden bird place कर दिया on a bare branch. The task was simple but challenging. Each prince had to shoot an arrow and hit the bird in its eye. सबसे पहले Yudhishthir stepped forward and Dronacharya asked him, "Can you see me?" He replied, "Yes." आगे he asked, "Can you see the tree, the bird and your brothers?" He replied, "Yes, very clearly." तो फिर द्रोणाचार्य ने बोला, देन पुट डाउन योर बो और आप जा सकते हैं. युधिष्ठिर ओबेड. वन बाय वन द अदर प्रिंसेस केम फॉरवर्ड. सब ने यही बोला कि वो वहाँ पे ट्री, बर्ड और गुरुजी सबको देख पा रहे थे. द्रोणाचार्य आस्क्ड ऑल ऑफ देम टू रिटायर फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, कि तुम सब डिस्क्वालीफाई हो चुके हो. ऐसे कह दिया, क्यों? क्योंकि उनके माइंड्स जो थे वो डिस्ट्रैक्टेड थे. फिर अर्जुन गए कॉन्फिडेंटली. उनने बोला, अर्जुन डू यू सी मी? अर्जुन ने रिप्लाई किया, नो, बिल्कुल भी नहीं. उन्हें वहीं पे अपनी नजर टिकाए रखी. डू यू सी द ट्री और योर ब्रदर्स? ही सेड नो. देन व्हाट डू यू सी? द्रोणाचार्य ने पूछा. आई सी द आई ऑफ द बर्ड ओनली, अर्जुन का आंसर था. और फिर सिर्फ अर्जुन को सेटिस्फाई होकर के द्रोणाचार्य ने अलाउ किया कि तुम अब एरो से शूट कर सकते हो. देखते हैं कि तुम शूट प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं. इतना कॉन्फिडेंटली अगर तुम्हारा निशाना है उस पर और इतना फोकस है उस पर. द्रोणाचार्य प्रेज्ड अर्जुन फॉर हिज शार्प फोकस एंड डिसिप्लिन and it struck at the bird's eye. Perfect concentration leads to the success. इस तरीके से आप अपनी स्टोरीज फॉर्म करेंगे, ऐसे रिपोर्ट लेटर सब फॉर्म करेंगे. अब तक में आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.